آپ سب کو ہمارے چینل تاریخ رات میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کریں۔ اس کے بعد لائٹ کو آف کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو کہانی سننے میں بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ڈراؤنی کہانی کو۔ میں اپنے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس کے کمرے میں آج پھر پنچایت لگی تھی۔ میری ساس، سسر، جیٹھ اور جٹھانی سبھی موجود تھے۔ میرے شوہر صوفے پر سر جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میری ساس کہہ رہی تھی، دیکھ شرجیل، میں نے تیری شادی تیرا گھر آباد ہونے کے لیے کی تھی، اس لیے نہیں کہ تو خوشیوں کو ترس جائے۔ اور انسان کی زندگی میں خوشیاں تب آتی ہیں جب اس کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہیں۔ جب بچہ پیار سے بابا کہتا ہے، بیٹا باپ کے سینے پر چڑھ کر سوتا ہے، تو باپ کی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ایک تو ہے بیل کی طرح محنت کیے جا رہا ہے اور آنگن تیرا سونا ہے۔ کل بڑھاپے میں کون تیرا سہارا بنے گا؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے؟ اپنے بڑے بھائی کو دیکھ، 4 بچے ہیں الحمدللہ۔ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ جب جب اللہ نے بچے دیے ہیں، بچوں کے نصیب سے تیرے بھائی کا رزق بھی بڑا ہے، اور تو خود کو دیکھ، بس ایک سوکھی بکری کو پالے جا رہا ہے۔ میرے شوہر بولے، اماں کچھ تو خیال کریں، شگفتہ نے سن لیا تو کیا سوچے گی؟ میری ساس نے جواب دیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے کیا نہیں۔ تیری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، کوئی ڈاکٹر تو نے چھوڑا ہے جس سے علاج نہ کروایا ہو، جس کے پاس چیک اپ کے لیے نہ گئے ہو؟ تیری شادی کو 5 سال ہوئے تھے، میں نے تو تب ہی کہہ دیا کہ یا تو اولاد ہوگی یا پھر 15-20 سال کے بعد کسی معجزے سے ہوگی۔ یہ 2 سال بھی میں صرف تیرے کہنے پر خاموش رہی، مگر پتر اب 7 سال گزر چکے ہیں۔ اولاد کے لیے بندہ کیا کیا جتن نہیں کرتا ہے۔ تو اگر دوسری شادی کر لے گا تو کون سی قیامت آئے گی؟ پھر وہ میرے سسر سے مخاطب ہو کر بولی، شرجیل کے ابا آپ کیوں خاموش ہیں؟ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ میرے سسر نے بیوی کی تائید کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، میرا خیال ہے کہ تمہاری اماں ٹھیک کہتی ہے۔ میری ساس نے کہا، بس جو میں نے کہہ دیا وہی فائنل ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، میں آج ہی اپنی بہن سے بات کرتی ہوں۔ یہ سن کر میرے شوہر کھڑے ہوئے اور بولے، اماں آپ کو جلدی کیا ہے؟ کیوں آپ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی ہیں؟ میری ساس نے کہا، پتر تیری زندگی کے 7 سال ضائع ہو چکے ہیں، پہلے ہی بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، اوپر سے تو ہتھیلی اور سرسوں کی باتیں کرتا ہے۔ میرے شوہر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑے، اماں جلد بازی کی ضرورت نہیں، مجھے سوچنے کے لیے وقت دیجیے۔ میری ساس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر اگر تو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جا۔ یہ سنتے ہی میرے جیٹھ بولے، اماں یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ساس نے کہا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میرے شوہر نے جواب دیا، ٹھیک ہے اماں، میں شگفتہ کو لے کر الگ ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے سے نکل آئے۔ میرے جیٹھ ان کے پیچھے یہ کہتے آئے، شرجیل یہ کیا بچپنا ہے؟ لیکن میری ساس نے بیٹے کو روک دیا، رک جاؤ محسن، اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو اسے جانے دو۔ میرے شوہر کمرے میں آئے، میں دروازے کے ساتھ لگی کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ شرجیل نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اپنی بائک کی چابی اٹھائی، مجھے نظر بھر کر دیکھا جیسے مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن کچھ بھی کہے بغیر وہ کمرے سے نکل گئے۔ میری ساس نے تو بالکل مجھ سے منہ پھیر لیا تھا، وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں نے ان سے ان کا بیٹا چھینا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ شرجیل اس لیے میری قدر کرتے کہ میں ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہمیشہ اپنی پلکوں پر رکھتی، ان کی ہر جائز بات کو ماننا میرا فرض اولین سمجھتی تھی۔ اولاد کے حوالے سے میری ساس کی ساری باتیں ٹھیک تھی، مگر مجھے دکھ یہ تھا کہ اولاد کے لیے میری تڑپ میری ساس کبھی نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ وہ اکثر یہ بات کہتی کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں کہ اولاد ہو یا نہ ہو۔
میری ساس کی جلی کٹی باتیں روزانہ میرے دل پر گہرے زخم لگاتی، مگر میں نے کبھی اپنی ساس کو پلٹ کر جواب نہ دیا۔ چند دن گھر میں بالکل خاموش رہی، ضرورت کوئی کسی سے بات نہ کرتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سبھی ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ میری ساس نے مجھے بھی کچن میں آنے اور گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا۔ میں سارا دن کسی فالتو سامان کی طرح اپنے کمرے میں پڑی رہتی، میرے حصے کا کھانا میری جٹھانی کمرے میں پہنچاتی۔ نہ جانے ایسا کب تک چلنے والا تھا۔ ادھر میرے شوہر اس دن کے بعد سے گھر سے سارا دن غائب رہنے لگے، راتوں کو بھی دیر سے گھر آتے اور کھانا کھا کر خاموشی سے سو جاتے۔ ان کی پریشانی ان کے چہرے پر لکھی تھی، اس لیے مجھے ان سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزرا۔ ایک دن میرے شوہر ڈیوٹی سے جلدی گھر آئے اور مجھے کہنے لگے، شگفتہ اپنے سامان کی پیکنگ کرو، کئی دن کی تلاش کے بعد مجھے اچھا سا مکان مل گیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میرے شوہر ڈیوٹی سے مکان کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے اور اس لیے وہ گھر بھی لیٹ آتے۔ یہ خبر گھر والوں تک پہنچی تو گھر میں پہلے سے سناٹا تھا، مزید سناٹا چھا گیا۔ میری ساس بیٹے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ میرے سسر نے بیٹے سے اپنا ارادہ بدلنے کے لیے کہا تھا۔ مگر میرے شوہر نے کہا، ابو میرا خیال ہے کہ کچھ وقت کے لیے فاصلہ کر لیں تاکہ غلط فہمیاں ختم ہو سکیں۔ میری ساس کے آنسو گر رہے تھے، وہ بولی، خیال رکھنا بیٹا، کہیں یہ فاصلے بڑھ ہی نہ جائیں۔ شرجیل ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بولے، اماں ہمارے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، میں تو بس ہم سب کو کچھ وقت دینا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں یہی بہتر لگتا ہے تو تم جاؤ، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، وقت خود ہی سارے فیصلے کرے گا۔ شرجیل نے ماجی کے پاؤں چومے اور گاڑی منگوائی۔ گھر والوں سے اجازت لے کر ہم اپنی نئی زندگی کے سفر پر نکلے۔ بس میری ساس ہی مجھ سے ناراض تھی، وہ مجھ سے ملی بھی نہیں اور مجھے دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ساس کی ناراضگی بہت سخت تھی۔ میں اس دعا کے ساتھ گھر سے نکلی کہ اللہ میری گود بھرے اور میری ساس کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ ہماری گاڑی مکان کے باہر رکی، ہم دونوں میاں بیوی موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اتنا خوبصورت علاقہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہمارے چاروں طرف سیب کے باغات تھے۔ شرجیل گاڑی سے سامان اتروا کر گھر کے اندر رکھوانے لگے۔ گھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ سیب کے باغ کے بیچوں بیچ ہمارا گھر کسی خواب جیسا تھا۔ شرجیل کی آواز آئی، شگفتہ کہاں گم ہو گئی ہو، اندر آ جاؤ۔ میں مسکرائی اور یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی، جہاں آپ لے آئے ہیں میں یہاں گم ہو ہی نہ جاؤں۔ وہ ہنسے اور کہنے لگے، اچھا اندر چلو، سب بتاتا ہوں۔ ہم کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میرے شوہر فیکٹری میں سپروائزر کی جاب کرتے تھے، تنخواہ اچھی تھی۔ میرا گھر سسرال سے تقریباً 1 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ یہ علاقہ شہر سے باہر تھا، شہر کی طرح شور ہنگامہ نہ تھا۔ دراصل شہر سے باہر اچھے مکان مناسب کرائے میں مل جاتے، جبکہ شہر میں مکانوں کے کرائے حد سے زیادہ تھے۔ اگر شہر میں مکان لیتے تو ایک تنخواہ میں گزارا مشکل ہوتا۔ سامان گھر کے اندر رکھوا کر گاڑی والا چلا گیا۔ شرجیل نے کہا، یہ گھر میری فیکٹری کے مالک کا ہے۔ میں گھر کے لیے بہت پریشان تھا۔ انہوں نے میری پریشانی دیکھی تو خود ہی پوچھنے لگے۔ میں نے وجہ بتائی، بس اسی شام وہ مجھے لے کر یہاں آئے۔ پوچھا، یہاں رہ لو گے؟ جگہ تو مجھے بہت پسند آئی، مگر میں نے سمجھا کہ لوکیشن اچھی ہے تو کرایہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ سیب کے یہ باغات انہی کے ہیں، ان کا یہ گھر برسوں سے خالی پڑا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر رہو گے تو میرے باغات کی دیکھ بھال بھی ہوگی، اگر میں نے کسی کو یہ گھر دینا ہے تو تم ہی رہ لو، کرایہ تم بے شک مت دینا۔ مگر میں نے فوراً سے حامی بھری، مگر یہ بھی کہہ دیا کہ جو کرایہ میں دے سکتا ہوں ادا کروں گا اور باغات کی دیکھ بھال بھی کروں گا۔ بس میرا سیٹ خوش ہوا، اس کی مشکل بھی حل ہوئی اور ہماری بھی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ شرجیل نے دروازہ کھولا۔ باہر 18-19 سال کی سانولی لڑکی کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ وہ اندر آئی، انہوں نے مجھے سلام کیا۔ شرجیل نے کہا، شگفتہ آبادی زیادہ دور نہیں، یہ ماسی رقیہ اور ان کی بیٹی ہے، محنت مزدوری کر کے گزارا کرتی ہیں، میں نے تمہاری مدد کے لیے انہیں بلایا ہے، گھر کی صفائی اور سیٹنگ میں یہ تمہاری مدد کریں گی۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ ہم نے کام کرنے کے لیے کمر کس لی کوٹھی نما 3 کمروں پر مشتمل
खूबसूरत मकान था। मकान चूंकि काफी अरसे से बंद था इसलिए काफी गंदा था। हमने पूरे घर की सफाई की, फर्नीचर सेट किया। मासी रुकैया की बेटी ने सबके लिए खाना तैयार किया। उसका नाम काजल था। मैंने मासी रुकैया से पूछा, मौसी आपने किससे मुतासिर होकर अपनी बेटी का नाम काजल रखा? मासी रुकैया बोली, इसकी सांवली रंगत से। मैं कहका लगाकर हंस पड़ी। मासी रुकैया की बेटी हल्के सांवले रंग की जरूर थी, मगर बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थी। सांवली रंगत पर हल्के ब्राउन कलर की आंखें दिल के आर पार होती महसूस होती। मैंने कहा, मौसी सच कहूं तो तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। अगर तुम इसका नाम रानी मुखर्जी भी रखती तो उस पर यह नाम खूब जचता। मौसी रुकैया बोली, पुत्र मेरी बेटी रानी तो पहले है। काजल नाम इसलिए रखा कि किसी की नजर ना लगे। मेरे शौहर घर नहीं थे, वो कह गए थे वो खाना बाहर से खाकर आएंगे और शाम में घर आएंगे। हम खाना खाने लगे। मैंने 2-3 बार काजल को बड़े गौर से देखा, जो उसने भी महसूस किया। सांवली रंगत में इतनी कशिश मैंने आज से पहले कभी देखी भी ना थी। मौसी रुकैया खुद भी एक खूबसूरत औरत थी। काजल की मुशाहबत काफी हद तक अपनी माँ से थी, बस उसकी माँ का रंग जरा साफ था। उसने लहंगा चोली पहना हुआ था। उसकी माँ के मुताबिक उसे लहंगा इस कदर पसंद है कि वो आम दिनों में भी लहंगा चोली पहनती है। मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं ज्यादा ही उसके बारे में सोच रही हूँ। मैंने अपने ख्याल को झटक दिया और खाना खाने में मसरूफ हुए। खाने के बाद मौसी रुकैया ने वापसी की इजाजत चाही, मगर हम सभी इतने थके हुए थे कि मैंने उन्हें रोक लिया और बोली, आप यहीं आराम करें, शाम को शर्जील आएंगे तो वो आपको घर पहुंचा देंगे। मौसी रुकैया मान गई। हम सभी आराम के लिए लेटे और हमारी आंख लग गई। मगरिब से कुछ ही देर पहले शर्जील घर आए। हम सब बेखबर सो रहे थे। दरवाजे की घंटी कई बार बजने के बाद काजल उठी। उसने जल्दी जल्दी से दरवाजा खोला। शर्जील अंदर आए। उन्होंने मुझे हिलाया। मैं उठकर बैठ गई। मौसी रुकैया भी उठ चुकी थी। शर्जील बोले, शगुफ्ता मगरिब होने वाली है। मौसी उठकर खड़ी हो गई, बोली, बेटा हमें पहले घर पहुंचा दो, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। इसने हमें रोक लिया, काम करके वैसे भी थक चुके थे। इसने कहा कि यहीं आराम करें, शाम में शर्जील छोड़ आएगे। चलो बेटा शाम हो रही है, हमें घर छोड़ आओ। शर्जील ने कहा, ठीक है आप चलें। मौसी रुकैया ने मुझे अलविदा कहा और चली गई। ये इलाका बहुत खूबसूरत था, खास तौर पर यह जगह। ज्यादा आबादी ना थी, दूर दूर डेरे बने हुए थे। कई एकड़ पर फैला बागात का ये सिलसिला निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश करता था। शर्जील सुबह नाश्ते के बाद फैक्ट्री चले जाते। मैं घर के काम खत्म करती और बाग में आ जाती। तन्हाई में परिंदों की आवाजें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं काफी वक्त उन्हीं बागात में गुजारती। अब तो शर्जील भी कहने लगे कि तुम्हें तो ये जगह कुछ खास ज्यादा पसंद आई है। ससुराल में थी तो बड़ी फैमिली में घर के काम काज में वक्त गुजर जाता, मुझे पता नहीं चलता, मगर यहाँ आने के बाद हम 2 लोगों के काम ही कितने होते थे। शर्जील के घर वापस आने तक मैं शदीद तन्हाई का शिकार होती। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती और अल्लाह से रो रो कर औलाद मांगती। यकीनन औलाद जैसी नेमत इस दुनिया में और कोई नहीं। एक दिन मैं बाग में सैर कर रही थी कि वक्त गुजारने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने इधर उधर देखा, करीब तो कुछ नहीं था। मैं आवाज की सिमत चल पड़ी। शायद बाग में कोई आया हो। फैक्ट्री का मालिक तो यही कहता था कि बागात की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए लोग आ जाते हैं, दरख्तों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और बाग से फल भी चोरी करके वो अपने साथ ले जाते हैं। मैं थोड़ी दूर गई तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा सफेद चादर में लिपटा जमीन पर पड़ा था, मगर इर्द गिर्द कोई नहीं था। बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत ना थी कि मैं आगे बढ़कर उसे उठाऊं। मुझे यकीन था कि इर्द गिर्द कोई जरूर होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बच्चे को फकत चुप कराने के लिए उठाऊं और बच्चे का मालिक मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं उसके बच्चे को अगवा कर रही हूं। थोड़ी देर तो मैं एक दरख्त की आड़ में खड़ी होकर बच्चे को देखती रही। फिर मुझसे रहा ना गया, मैं डरते डरते आगे बढ़ी। मैंने बच्चे को गोद में उठाया, इधर उधर देखती रही कि शायद कोई आए, मगर कोई भी ना था। मैं बच्चों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी, मगर कोई भी नहीं आया। क्या कोई बच्चे को यहाँ छोड़कर गया था? मैं डरते डरते घर की तरफ चली जा रही थी।
पर कोई भी ना आया तो मैं तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ बढ़ी। घर के अंदर दाखिल हुई तो दरवाजा बंद किया। अपने कमरे में आई, मैंने बच्चा बेड पर लिटाया। वो खामोश हो गया था, अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे देख रहा था। बच्चे की उम्र 5 से 6 माह होगी। इतना खूबसूरत बच्चा कोई कैसे बाग में अकेला छोड़ सकता था। मेरे जहन में तरह तरह के सवालात आ रहे थे। बच्चा दोबारा रोने लग गया। मैं क्या करती, मेरे पास तो फीडर भी ना था। फीडर से उसे दूध पिलाती। मैंने कप में दूध लिया और चम्मच से उसके मुंह में दूध डालने लगी। बच्चा बहुत भूखा था, वो आधा कप दूध पी गया, बल्कि दूध पीते पीते वो सो गया। मैंने वो कप रखा, उसका मुंह साफ किया और उसे गोद में लिया। गोरा रंग, उसके भूरे बाल, उसकी हल्की भूरी आंखें, गुलाबी होंठ, बड़े बड़े खूबसूरत। माँ बाप की औलाद था, न जाने कौन उसे बाग में छोड़ गया था। शायद उसके माँ बाप उसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। अगर उसके माँ बाप उसे ढूंढते हुए आ जाते तो ये उनकी अमानत है और अमानत लौटाना हमारा फर्ज है। मैंने बच्चे को सीने से लगा लिया। आवाज आई, अल्लाह पाक मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही बेटा दे। वो गहरी नींद में सो चुका था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया। काफी देर बस उसे देखती रही। आखिर जोहर का वक्त हुआ। मैंने नमाज अदा की और बच्चे के पास आकर मैं सो गई। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। शर्जील आ गए थे। उन्होंने सलाम किया और बोले, जब से यहाँ आई हो सोती रहती हो, इस तरह तो बिल्कुल सुस्त हो जाओगी। ये कहते हुए वो कमरे में आया, मगर जैसे ही उनकी नजर बेड पर लेटे उस बच्चे पर पड़ी, वो ठठक कर रुक गए और बोले, ये बच्चा किसका है? मैंने कहा, नहीं मालूम। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब नहीं मालूम, मजाक कर रही हो? ये कहकर वो बेड पर ही बैठ के मैं उनके पास बैठी, उन्हें सारा वाकया सुनाया। शर्जील कहने लगे, तुम्हें इसे लाना भी नहीं चाहिए था। क्या पता इसका कोई अपना वहीं कहीं बाग में घूम फिर रहा हो। मैंने कहा, घूम भी रहा हो तो क्या बच्चे को लावारसों की तरह जमीन पर रख कर घूमा फिरा जाता है? मैंने काफी देर इंतजार किया कि शायद कोई आए, मगर कोई नहीं आया। तब मैं उसे लेकर घर आई हूँ। अगर उसे ढूंढते हुए कोई आ गया तो हम उसे इसके हवाले करेंगे। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और खामोश हुए। न जाने उस बच्चे की माँ ने उसका क्या नाम रखा होगा, मगर मैंने उसका नाम अहमद रखा। घर में बच्चे की मौजूदगी ने मेरी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। मुझे पहली बार इल्म हुआ औलाद जिंदगी में कितनी बड़ी नेमत है। शर्जील भी बच्चे की मौजूदगी से खुश थे, मगर वो थोड़ा से डरे हुए थे कि न जाने ये बच्चा किसका है। वो मुझे बार बार याद दिलाते और कहते कि शगुफ्ता, हमें नहीं मालूम ये बच्चा कौन है। कल को इसके वाली वारिस इसे तलाश करते हुए आ गए तो हमें इस बच्चे को इन्हें वापस करना पड़ेगा। लिहाजा इसके साथ इस कदर मानूस मत हो जाओ कि कल को अगर तुम्हें इससे जुदा होना पड़े तो तुमसे ना हो पाए। मगर सच तो ये था कि अहमद की जुदाई का सोचकर ही मेरा दिल भर आता। शर्जील ने अहमद के बारे में अपने घर भी बताया तो मेरी सास ने पहले तंज यही किया कि तुम्हारी बीवी पराए बच्चे से ऐसे खुश हो रही है जैसे खुद पैदा किया हो। कल को उसे लेने वाले आ गए तो क्या करोगे? अपना तो खिलौना भी कोई किसी को नहीं देता, वो तो फिर जीता जागता सांस लेता एक बच्चा है। बहरहाल मैंने अपना दिल मजबूत करके रखा और अहमद की परवरिश अमानत के तौर पर कर रही थी, मगर जाहिर यही कर रही थी कि मेरी अपनी गोद खाली थी, इसलिए मुझे उससे खास इंसियत थी। अहमद 1 साल का हो गया मगर उसे लेने कोई भी ना आया। एक दिन शर्जील के फैक्ट्री जाने के बाद मैंने घर का कामकाज खत्म किया और अहमद को लेकर बाग में निकल आई। दिन के तकरीबन 12 ही बजे थे कि शर्जील घर वापस आया और अपने कमरे में लेट गया। मैं अगर घर पर ना होती तो इन्हें पता होता कि मैं बाग में गई हूँ, क्योंकि बाग के अलावा मैं कहीं भी ना जाती। शर्जील बेड पर लेटे थे कि कमरे में काजल चली आई। उसने शर्जील को सलाम किया। काजल की आवाज सुनकर शर्जील हड़बड़ाकर उठ बैठे। शर्जील ने कहा, खैरियत है काजल, तुम यहाँ कैसे आई हो? वो बोली, बस वैसे ही साहब, मैंने सोचा शगुफ्ता बीबी को कोई काम होगा तो उनकी मदद करा दूंगी। शर्जील ने कहा, शगुफ्ता घर नहीं है, यकीनन वो बाग में गई होंगी, तुम बाद में आना। मगर काजल कमरे के अंदर चली गई और बोली, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्या आपको बुखार है?
शर्जील ने कहा, हाँ मुझे बुखार है इसलिए मैं जल्दी आया हूँ। काजल ये कहते हुए आगे बढ़ी और फिर, आपके सर में दर्द भी होगा, मैं आपका सर दबा देती हूँ। शर्जील फौरन बोला, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर काजल शर्जील के बेड के करीब गई और बोली, कोई बात नहीं साहब, मैं दबा देती हूँ। इतने में मैं पहुंच गई। मैं हैरानो परेशान काजल को देख रही थी। मुझे देखते ही वो रुक गई और शर्जील बिस्तर से खड़ा हुआ। बोले, काजल तुमसे मिलने आई है। मैं कमरे के अंदर गई और कहा, मैं तो घर पर ना थी तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। वो लड़खड़ाती जबान के साथ बोली, जी मैं जा रही थी मगर साहब को बुखार था तो उनका हाल पूछने के लिए रुक गए। मैं काजल के सामने खड़ी गौर से उसे देख रही थी। 1 साल का अहमद मेरी गोद में खेल रहा था। उसने अपने नन्हे हाथ से एक थप्पड़ काजल के मुंह पर मार दिया। काजल ने हाय करके अपना हाथ अपने गाल पर रखा और वापस जाने लगी। मैंने कहा, दोबारा यहाँ पर मत आना। वो चली गई। मैंने शर्जील की तरफ देखा। वो बोले, शगुफ्ता ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, कम से कम मेरी तरफ से कतन नहीं। मैंने कहा, 1 साल के नन्हे बच्चे ने उसे थप्पड़ मारा तो हाय कहते हुए उसने अपना हाथ गाल पर रख लिया। बड़ी ड्रामेबाज लड़की है, देखा आपने? शर्जील ये कहकर बिस्तर पर लेट गया। हाँ देख लिया। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो बोले, इसलिए तो छुट्टी लेकर जल्दी आया हूँ, दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, मुझे दलिया बना दो। वो खाकर मैंने दवाई लेनी है। मुमकिन है वैसा ना हो जैसा तुम सोच रही हो। शायद वो कम उम्र थी और तालीम याफ्ता भी ना थी। बहरहाल मुझे काजल की बेबाकी बिल्कुल पसंद ना आई। कुछ भी था मगर वो जवान तो थी। उसे अपने और नामहरम के बीच फासले का ख्याल रखना चाहिए था। चंद दिन के बाद काजल घर आई। मैं अहमद के साथ बेड पर खेल रही थी। काजल सीधा कमरे में चली आई। उसने मुझे सलाम किया और वो नीचे बैठ गई और वो शर्मिंदा नजरों के साथ अपना सर झुकाए बैठी थी। कहने लगी, बाजी मुझे पता है मैंने आपका दिल दुखाया है, मगर सच पूछें जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो वो कानों को हाथ लगाते बोली, मुझे तो पहले अम्मा ने मार देना है। मेरी अम्मा गुस्से की बहुत तेज है। फिर उसने मेरे घुटनों पर हाथ रख दिया और बोली, मुझे माफ करें, मेरा कसूर नहीं। हाँ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि आप लोगों की तरह सोचूं। हम लोग बस ऐसे ही हैं, सादे से और मुंह फट। मगर आप मेरा यकीन करें ये सब एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। बाजी आप बहुत अच्छी हैं, मुझसे दोस्ती कर ले। सच्ची से इस दोस्ती के बदले आपको एक लहंगा गिफ्ट करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं कहका लगाकर हंस पड़ी। अच्छा लहंगा? वो मुस्कुराते हुए बोली, जी। मैंने कहा, लहंगे की जरूरत नहीं, आज मेरे साथ किचन में खाना बनवा दो, यही तुम्हारी सजा है। वो खुशी से खड़ी हो गई और दुपट्टे को अपनी कमर पर लिपेटते हुए बोली, ये भी कोई काम है? मैं खाना बनाऊंगी, आप अहमद के साथ आराम करें। ये कहते ही वो उछलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं उसे देखकर हंस रही थी। वो वाकई में लाउबाली शख्सियत की थी, जवान हो चुकी थी मगर अभी भी उसमें बचपना था। बिलाशुबा वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और मिनटों में सारे काम भी खत्म कर दिया करती। मासी रुकैया ने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरबियत दी। शर्जील भी 3 दिन बुखार के बाद सेहत याब हो चुके थे। मैंने उसे शर्जील की पसंद का खाना बनवाया। उसने खाना तैयार किया, फिर अहमद के साथ खेलती रही और शर्जील के वापस आने से पहले वो चली गई। मेरा दिल काजल की तरफ से मुतमईन हो चुका था। उस दिन के बाद वो अक्सर ही कभी शर्जील की मौजूदगी और कभी गैर मौजूदगी में घर चली आती, घर के कामों में मेरा हाथ बटाती और चली जाती। मेरी रूटीन थी कि मैं थोड़े या ज्यादा वक्त के लिए अहमद को लेकर दिन में एक बार सेब के बागात में चहल कदमी के लिए जरूर जाया करती। एक दिन शर्जील मेरी गैर मौजूदगी में घर कोई जरूरी फाइल लेने के लिए आए। मैंने उन्हें दूर से ही घर आते हुए देख लिया था। मैं भी तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ चली। मुझे यही डर था कि आज फिर वो जल्दी आए हैं, कहीं उन्हें फिर से बुखार तो नहीं हो गया। मगर मेरी नजर काजल पर पड़ी, वो भी घर की तरफ जा रही थी। उसे देखकर मैं दरख्त की ओट में छुप गई। वो घर के अंदर दाखिल हुई। मैंने अहमद को गोद में उठाया और तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ चली। दरवाजे से अंदर दाखिल हुई कमरे से काजल और शर्जील की आवाजें आ रही थी। शर्जील कह रहे थे, काजल तुम पागल हो गई हो। शगुफ्ता का एतमाद बड़ी मुश्किल से बहाल हुआ है, उल्टे पांव यहाँ से वापस चली जाओ, समझी? काजल बोली, शर्जील साहब मैं अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हूँ।
آج تک آپ کے علاوہ کوئی میرے دل کو اچھا بھی نہ لگا۔ جو مرضی قسم لیم آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی، مگر میں کبھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ شرجیل نے کہا کاجل میرا ہاتھ چھوڑو۔ کاجل بولی کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ شرجیل بولے اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گی، چلو نکلو میرے گھر سے۔ میں جلدی سے ساتھ والے کمرے میں گھس گئی اور کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ شرجیل کاجل کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتے ہوئے باہر والے گیٹ کی طرف لے جا رہی تھی۔ جانتی ہو تمہاری عمر کی میری چھوٹی بہن ہے، میں تمہاری یہ بکواس مزید نہیں سن سکتا۔ کاجل شرجیل کی منتیں کرنے لگی، شرجیل صاحب خدا کے لیے مجھے اس طرح گھر سے مت نکالیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شرجیل نے گیٹ کھولا اور کاجل کو گھر سے باہر دھکے دیتے ہوئے بولے کہ اب تم ادھر کا رخ مت کرنا۔ کاجل غصے سے چلائی، آپ کو غرور کس بات کا ہے؟ آپ کی بیوی ایک اولاد تو آپ کو دے نہیں سکتی، پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا کر گھوم رہی ہے۔ شرجیل بولے خبردار، بہت ہوا، بس چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کیا۔ میں دروازے کے پیچھے سے نکلی اور انہیں دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور واپس مڑے، مگر مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ کاجل بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں خود کو تلاش کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے اندر چلے گئے۔ چند لمحوں کے بعد کمرے سے نکلے، ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ انہوں نے فائل مجھے دکھاتے ہوئے کہا میں یہ فائل لینے آیا تھا، شام کو تھوڑی دیر ہو جائے گی، فیکٹری میں کام زیادہ ہے، تم پریشان مت ہونا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ محبت بہت بے رحم ہوتی ہے، جس سے ہو جائے انسان اس سے دستبردار ہونا بھی اپنا جرم، اپنی تذلیل سمجھتا ہے۔ کاجل کی محبت کی توہین ہوئی تو اس کی حالت بھی کم و بیش ایسی تھی جس طرح وہ چلا رہی تھی، لیکن مجھے بہت صدمہ ہوا۔ مجھے کاجل سے یہ امید نہ تھی۔ میں نے اس پر دوبارہ بھروسہ کیا اور اس نے دوبارہ مجھے دھوکہ دیا۔ کاجل گھر جانے کی بجائے سیب کے باغات میں چلی گئی۔ اسے اپنی کہکشاؤں کی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی۔ چلتے چلتے وہ روتی ہوئی باغ کے آخری حصے میں چلی گئی۔ باغ کے آخری حصے میں پہنچتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور اس نے زور سے چیخ ماری۔ میں احمد کو سلا رہی تھی، اس کی درد بھری چیخ میرے کانوں نے بھی سنی تھی۔ وہ رو رہی تھی، محبت میں شکست اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسی وقت ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے کاجل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کاجل نے اس کی طرف دیکھا، عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ادھیڑ عمر عورت تھی۔ عورت نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا شگفتہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں، ہم دونوں ہی اس کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی کاجل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اجنبی عورت بولی کچھ لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ بھی کریں تو سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اور ہم چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاجل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی شگفتہ بی بی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اجنبی عورت گہرا سانس بھرے ہوئے بولی تمہاری بی بی کے پاس میرا بیٹا ہے۔ کاجل نے حیرت سے کہا کیا؟ شگفتہ بی بی کے پاس تمہارا بیٹا ہے؟ اجنبی عورت بولی ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ کاجل نے کہا اگر وہ بچہ تمہارا ہے تو جا کر اسے لے لو۔ اجنبی عورت بولی جب میرا بچہ کھویا تھا اس وقت وہ 5 مہینے کا تھا، اب وہ 1.5 سال کا ہو چکا ہے، اس کی تو شکل تبدیل ہو چکی ہوگی، نہ جانے اب اس کی پرانی نشانیاں بھی ہوں گی یا نہیں، میری بات کا کون یقین کرے گا؟ کاجل نے کہا پھر میں آپ کی بات کا کیوں یقین کروں؟ اجنبی عورت بولی تمہیں میرا یقین کرنا ہوگا ورنہ میں اپنے بچے کے بغیر مر جاؤں گی۔ تمہیں یہ تو یقین ہے کہ تمہاری بیوی کو ملنے والا بچہ 5 مہینے کا تھا اور اسے وہ بچہ اسی باغ سے زمین پر پڑا ملا تھا۔ کاجل نے ہاں میں سر ہلایا۔ اجنبی عورت بولی تو پھر یقین کرو، میں وعدہ کرتی ہوں تم میرا بچہ مجھے دلاؤ، میں تمہیں ایسا تعویذ دوں گی کہ شرجیل کا دل خود بخود تمہارے نام کے لیے نرم ہو جائے گا، بلکہ وہ خود تمہارے پاس دوڑا چلا آئے گا۔ کاجل نے کہا کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے، اس لیے تو وعدہ کر رہی ہوں۔ کاجل نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اجنبی عورت بولی کل کسی طرح میرے بچے کو چھپا کر اسی جگہ لے آنا، میں تمہیں ایسا تعویذ دوں گی جو شرجیل کے دروازے پر دفن کرتے ہی اس کے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ کاجل نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ اگلے دن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ احمد کمرے میں سو رہا تھا، مجھے آہٹ ہوئی، میں فوراً کچن سے نکلی، کیا دیکھتی ہوں کاجل نے احمد کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
मगर वो बाहर वाले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। मैं चिल्लाई, कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। मैं उसके पीछे भागी, इससे पहले को वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती। मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसके हाथ से अहमद छीना, उसे थप्पड़ दे मारा। कहाँ ले जा रही थी मेरे बेटे को? वो बोली, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। वो अहमद को मुझसे छीनने लगी। उसी दौरान अहमद उठ गया। मैंने उसे धक्का दिया, वो पीछे हटी। मैंने दरवाजा खोला ताकि उसे घर से बाहर निकाल सकूं, लेकिन उसने किसी बिखरी हुई शेरनी की तरह मुझ पर हमला किया। अहमद ने अपने नन्हे हाथों से उसके बाल खींचे, मगर इतने जोर से खींचे कि वो चिल्ला उठी और हैरत से अहमद की तरफ देखते हुए बोली, इतने छोटे से बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आई? शगुफ्ता बीबी, आज या तो आप रहेंगी या मैं। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसे रोका, मगर इस बार अहमद ने फिर से उसके बाल खींचे और इतनी जोर से खींचे कि वो चीखते हुए कहने लगी, मेरे बाल छोड़ो। इसी असना में मैंने उसे घर से बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई। मैं किचन में आई, फ्रिज से पानी की बोतलें निकाली, कमरे में आई और कमरे का दरवाजा बंद किया। मैंने अहमद को बिस्तर पर बिठाया और खुद भी वहीं पर बैठ गई। दरवाजा बजाने की आवाज आई। काजल जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। मैंने पानी पिया, अहमद को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर के बाद खामोश हुई। मैंने शर्जील को कॉल की और उन्हें जल्दी घर आने के लिए कहा। असर के वक्त शर्जील घर पहुंच गए। पूछने लगे, क्या हुआ शगुफ्ता, खैरियत तो है? आज बहुत ज्यादा मसरूफियत थी। फैक्ट्री से निकलते निकलते 1 घंटा मुझे लग गया। शहर में ट्रैफिक इतनी थी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 घंटा मजीद लग गया। अहमद फर्श पर खेल रहा था। मैंने शर्जील को दोपहर का सारा वाकया सुनाया। वाकया सुनते ही शर्जील दमबखुद रह गए। बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो पागल हो चुकी है, या वो पहले से पागल थी। आज वो अहमद को मुझसे छीन कर ले जाती। अगर अल्लाह ने मदद ना की होती, कोई नॉर्मल शख्स किसी के घर में घुसकर दिन दिहाड़े कैसे बच्चे को अगवा कर सकता है? ऐसा तो सिर्फ आदि मुजरिम ही करते हैं। शर्जील बोले, शगुफ्ता, तुम कुछ दिन के लिए घर से बाहर मत निकलो और घर का दरवाजा भी बंद रखा करो। मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हें या अहमद को नुकसान भी ना पहुंचा दे। मैं उसके घर जाता हूँ, उसकी माँ से बात करता हूँ और इसके बाद भी अगर वो बात ना आई तो फिर मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं इलाके के चंद बुजुर्गों को इस मामले में शामिल करूंगा। ये कहकर वो चले गए। मैं अहमद के पास ही फर्श पर बैठ के उसे खेलते हुए देखने लगी। मैं खुद हैरान थी कि 1.5 साल का बच्चा इतने जोर से किसी के बाल कैसे खींच सकता है। ये यकीनन अल्लाह की मदद थी। मेरा बेटा अपने पैरों पर चल कर हंसते हुए मेरे पास आया तो मैंने उसे गले से लगाया। मेरे शौहर शर्जील मासी रुकैया के घर शिकायत लेकर गए। पहले तो उसे यकीन नहीं आया। वो शर्जील के साथ लड़ पड़ी, लेकिन उसी वक्त काजल ने कहा, माँ, शर्जील साहब जो कह रहे हैं ठीक है। ये सुनने की देर थी कि मौसी रुकैया वही काजल को मारना शुरू किया और बोली, बेटा तुम जाओ, आज के बाद तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी। अगले दिन एक बार फिर काजल रोती धोती बाग में उसी जगह पहुंची। वो इधर उधर नजरें दौड़ाए उसी औरत को ढूंढ रही थी। अचानक उसे आवाज आई, नालायक, कहीं खाली हाथ आई है? तो आती ही ना, आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। काजल ने आवाज की सिमत देखा। करीब एक घने दरख्त पर वही अजनबी औरत बहुत ही मोटे और मजबूत तने पर अपनी टांगे लटकाए बैठी जोर जोर से अपनी टांगे हिला रही थी। काजल ने कहा, आप वहां ऊपर क्यों बैठी हैं? औरत बोली, तो यहाँ क्यों आई है? काजल ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपका काम नहीं कर सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जिस दिन शर्जील साहब मेरे साथ शादी के लिए राजी हो जाएंगे, मैं आपको आपका बेटा ला दूंगी, क्योंकि शादी के बाद तो जैसा मैं उन्हें कहूंगी वैसा करेंगे। औरत आना फना दरख्त से छिलांग लगाकर काजल के सामने आ खड़ी हुई। काजल डर के मारे पीछे हटी, मगर उसने काजल को गिरेबान से पकड़ा। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तू खाली हाथ यहाँ आई क्यों है? मुझे हारे हुए इंसान जहर लगते हैं। ये कहकर उसने काजल को उठाकर जोर से दूर फेंक दिया। उसका सर दरख्त के साथ टकराया और वो वहीं बेहोश हुई। मैं अहमद को सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसके सोने का वक्त था, मगर न जाने वो काफी देर से क्यों बेचैन था। वो सो नहीं रहा था। मैं उसे गोद में लिए सहन में टहल रही थी। अचानक मेरे सर पर किसी ने मारा। मैं आगे की तरफ जा गिरी, लेकिन अहमद को मैंने नीचे गिरने से बचा लिया। मैंने मुड़कर देखा, भयानक औरत मेरे सामने खड़ी थी।
वो बोली, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्नी हूँ। बड़ी ढीठ है तू, हर वक्त इस बच्चे को सीने से लगाए घूमती है, छोड़ती नहीं है। ये बच्चा मेरा है, इसे मेरे हवाले कर। मैं अहमद को गोद में लिए खड़ी हुई और बोली, अहमद मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जिनजादी चिल्लाती हुई आगे बढ़ी, मैं इंसान नहीं कि तू इससे हार जाओ, मगर इसी लम्हे वो रुक गए। अहमद मेरी गोद से उतरने लगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, कहीं मत जाओ, मगर वो जबरदस्ती नीचे उतरा और जिनजादी के सामने खड़ा हुआ। जिनजादी दर्द से कराते हुए अपनी गर्दन को घुमाने लगी। अहमद उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे हटती जा रही थी। जिनजादी चिल्लाई, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं तुझे वक्त के चक्कर में ऐसा फंसाऊंगी कि कोई तुझे वहां से निकाल नहीं पाएगा। और जिस बच्चे को तू लेकर घूम रही है, ये बच्चा अभी उसने इतना ही कहा था कि वो मेरी नजरों के सामने गायब हुई। अहमद मेरी तरफ बढ़ा, मगर मैं उससे खौफजदा थी, लेकिन हमेशा की तरह वो भागता मेरी टांगों से लिपट गया और बोला, मम्मा मम्मा। मैंने उसे उठाया और अंदर कमरे में ले आई। अगली सुबह मैं सोकर उठी। मैं कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी थी। शर्जील अहमद को गोद में लिए सोफे पर बैठे हुए थे, बहुत परेशान लग रहे थे। मेरी नजर घड़ी पर पड़ी, सुबह के 9 बज रहे थे। आज मैं काफी देर तक सोती रही। शर्जील तो 7 बजे ही फैक्ट्री के लिए निकल जाते। वो अब तक यहीं बैठे थे और मुझे जगाया भी नहीं। अहमद की मुझ पर नजर पड़ी, मुझे देखकर वो हंसने लगा। मैं उठी और शर्जील की तरफ चल पड़ी। चंद कदम चली होंगी कि मैं किसी चीज से टकराई और पीछे हट गई। मैंने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर फिर टकराई और पीछे हट गई। मेरे सामने क्या चीज थी, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। शर्जील भी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। इतने में शर्जील को फोन आया। उन्होंने पास पड़ा मोबाइल उठाया और कहने लगे, भाई साहब, पता नहीं शगुफ्ता कहाँ चली गई, कल शाम से गायब है। मैं तो यहाँ हूँ। शर्जील, क्या हो गया है आपको? भाई, अब मैं FIR दर्ज कराने थाने जा रहा हूँ। चले ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपना फोन बंद किया। मैं चिल्लाई, शर्जील, मैं आपके सामने तो खड़ी हूँ, आप मुझे क्यों नहीं देख रही? मगर जैसे ही मैं आगे बढ़ी, फिर वहीं पर रुक जाती। इतने में शर्जील उठे और अहमद को लेकर बाहर निकल गए। अहमद मेरी तरफ देखकर हंस रहा था, जैसे कि मेरे पास आ जाना चाहता हो। मैंने गौर किया तो मेरे सामने शीशे की निहायत ही बारीक दीवार थी। फिर मैं उसे अपने हाथों से छूती चली गई। सिर्फ सामने नहीं, मैं शीशे के बहुत बड़े बॉक्स के अंदर कैद थी। शायद मेरी आवाज भी बाहर नहीं जा रही थी, मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल अहमद के साथ खेल रही थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, जिस वक्त मैंने अहमद को गले से लगाया, मेरा सर बहुत भारी होने लगा और फिर मैंने तुझे वक्त के चक्कर में कैद कर दिया। मैंने आवाज की तरफ पलटकर देखा। मेरे सामने वही जिनजादी खड़ी थी, मुझे देखकर खौफनाक तरीके से हंस रही थी। मैं बोली, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो? बोली, मैं एक चुड़ैल हूँ और जिस बच्चे को लेकर तू घूम रही है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक जिन का बच्चा है। कोहे काफ का शहजादा है। मैं तब से इसे ढूंढ रही हूँ, जब से वो पैदा हुआ है, मगर उसकी मकार माँ उसे मुझसे छुपाती रही और एक दिन न जाने कब वो अपने बच्चे को इस दुनिया में छोड़ गई। वो तुझे मिल गया। वो बच्चा बहुत ताकतवर है, उसे तो मैं आज लेकर जाऊंगी, चाहे मुझे तेरे शौहर को ही क्यों ना मारना पड़े। मैं चिल्लाई, नहीं, मेरे शौहर को कुछ मत कहना। मगर देखते ही देखते वो गायब हुई। मैं उस वक्त के चक्कर से कैसे निकलूं? मुझे शर्जील को बचाना है और अहमद, इसका क्या होगा? मैं नीचे बैठी और रोने लगी। करीब 2 घंटे के बाद शर्जील अहमद को लिए कमरे में आई। उनके साथ मेरे जेठ भी थे। शर्जील ने अहमद को जमीन पर छोड़ा। मेरे जेठ कहने लगे, फिक्र ना करो शर्जील, हमने FIR दर्ज कराई है, तुम फिक्र ना करो, शगुफ्ता जल्द ही मिल जाएगी। शर्जील ने कहा, हो सकता है काजल से पूछताछ करने के बाद पुलिस मुझे बुलाए। मतलब शको शुबे में शर्जील पुलिस में काजल का नाम लिखवा आए थे। मैं शीशे से टेक लगाए नीचे बैठी थी। अहमद मेरे पास आया और मुझे मम्मा मम्मा कहकर पुकारने लगा। वो मुझे देख सकता था। इतने में मेरे जेठ खड़े हुए और बोले, अच्छा शर्जील, अब मैं चलता हूँ। अब्बू को अभी मैंने कुछ नहीं बताया, वो परेशान हो जाएंगे। अल्लाह जल्द ही ये मुसीबत टाले। कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। शर्जील ने कहा, जी भाई, आज मैं घर पर ही हूँ। बातें करते दोनों कमरे से बाहर निकल गए। शर्जील कमरे में आए, अहमद पर एक नजर डाली और साथ वाले कमरे में चले गए। उनके जाते ही दरवाजा बंद हुआ। कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी, वो भी रोशनदान से आ रही थी। खौफ के मारे में उठकर खड़ी हुई। उसी दौरान वो चुड़ैल कमरे में नमूदार हुई। अहमद भी उसकी तरफ मुड़ा और वो बोली, चल बच्चे मेरे साथ, जाने का वक्त हो चुका है।
मगर अहमद उसे देखकर हंस रहा था। उसने अहमद की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं चिल्लाई, मेरे बेटे को छोड़ दो, ये किसी जिन का बच्चा नहीं है। मगर अहमद ने उसका बाजू पकड़कर मरोड़ दिया और वो चीख मारकर नीचे गिरी। अहमद कहका लगाकर हंस पड़ा। खौफ से मैं पीछे हटने लगी। क्या वाकई में अहमद जिन का बच्चा था? क्योंकि इंसान के बच्चे में ऐसी ताकत नहीं होती। चुड़ैल को गुस्सा आया। वो गुस्से से लाल पीली अहमद की तरफ बढ़ी, लेकिन वो भाग पड़ा। उसने भागते हुए चुड़ैल को ठोकर मारी और वो धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरी। अहमद कह के लगाता भागता हुआ सोफे पर चढ़ गया। काफी देर के बाद अहमद को उसी तरह भगाता रहा। वो भी उसे पकड़ पकड़ थक चुकी थी। मैंने हंसते हुए चुड़ैल से कहा, मैं इंसान हूँ इसलिए तुमने मुझे कैद तो किया, लेकिन औकात तुम्हारी इतनी है कि एक जिन के 2 साल बच्चे से तुम नहीं जीत सकती। ये सुनते ही वो गुस्से में आई। वो तेजी से भागी, शीशे के आर पार मेरे सामने खड़ी हुई। उसने मेरी गर्दन दबोची, गुस्से से गरजी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने में अहमद ने वहीं सोफे पर बैठे बैठे अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। चुड़ैल कराहते हुए बाहर निकली। छोड़ मेरे बाल। लेकिन अहमद उसके बाल खींचता हुआ उसे बाहर निकाल ले गया। इतने में शर्जील जोर जोर से दरवाजा बजाने लगे। वो कह रहे थे, ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? कौन है अंदर? अहमद बेटा, अहमद बेटा। चुड़ैल फर्श पर बैठी हुई थी। अहमद ने मुसलसल उसके बाल पकड़ रखे थे। इतने में कमरे में एक और जिनजादी नमूदार हुई। उसे देखकर चुड़ैल बोली, मलका आप? जिनजादी ने कहा, तू मेरे बेटे का तो मुकाबला नहीं कर सकती, तू हार क्यों नहीं मान लेती? मैं अपने बेटे को इंसानी दुनिया में तेरी नजर से बचाने के लिए छोड़ गई, क्योंकि उस वक्त मेरा बेटा बहुत छोटा था और तू इसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन जिस दिन ये भली औरत मेरे बेटे को बाग से लेकर आई, मैं इसे देख रही थी। तू क्या समझती है कि मैंने अपने बेटे पर नजर नहीं रखी?